घर बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवाइए, फोन लगाइए, खाना मंगवाइए। मोबाइल संख्या 884400653735 तो आज ही संपर्क कीजिए। मैं हूँ खुर्शीद आलम। कोविड-19 के चलते भारत को लॉकडाउन किया गया है। इसके चलते कई स्वयं संगठन और प्रशासन की ओर से जी जान तोड़कर यहाँ पर लोगों की सहायता की जा रही है। और हाल ही में जो है सरकार की ओर से जो फ्री में दूध बांटने का जो स्कीम है ये भी शुरू हुआ है। KMF की तरफ से दूध की जो पैकेट आती है वो महानगर पालिका के अंडर में आती है और महानगर पालिका की ओर से तमाम वार्डों को ये दूध सप्लाई किया जाता है। और महानगर पालिका के इस जो डिस्ट्रीब्यूटर के इंचार्ज हैं मोरे सर, आइए इन्हीं से जानते हैं कि कितना दूध आता है, कितने वार्डों को जाता है और इसका सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है, क्या सही मानों में उन हकदारों को दूध पहुंच रहा है। इन तमाम की जानकारी हम इनसे लेते हैं। ಘನ ಸರ್ಕಾರವ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಾಲು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರವರಿಂದ 16,000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲುಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ 16,000 ಲೀಟರನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬಡ ಜನರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಘ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾನಿಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ಈಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳು ಏನೋ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು 5 ಜನ ಹುಡುಗರದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಏನು ಉಚಿತ ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 1 ಲೀಟರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರು? ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು 1 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು। ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಪಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪಾಕೆಟು KMF ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ। ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಂದಿನಿಂದ 1 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ 1 ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೀಟರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಸಲಂ ಏರಿಯಾದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಗಮ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿತರಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೊರೆ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ महानगर पालिके विजयपुर। थैंक यू। तो 16,000 लीटर दूध जो है महानगर पालिका के अंडर में सुबह आता है 5 बजे और यहाँ पर जो है जो स्वयं संस्था के वॉलंटियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर घर को जाकर सलम एरिया, तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा ये सिर्फ स्कीम जो है सलम एरिया में
जो गरीब परिवार बसते हैं उनके लिए ये आधा लीटर दूध, आज से आधा लीटर दूध हर घर को पहुंचाया जाएगा। और इससे पहले जो कल तक जो है एक परिवार को 1 लीटर दूध दिया जाएगा, लेकिन आज से जो है आधा लीटर हर घर को जो सलम एरिया में जो इसके हकदार हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। तो इन्हों जो है एक टास्क फोर्स भी बनाया है, मॉनिटरी कमेटी बनाई है जो इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए। आइए हम ग्राउंड पे चलते हैं कि सही मानों में ये उन हकदारों तक, उन गरीब परिवारों तक दूध की पैकेट पहुंच रही है या नहीं है, हम इसकी जानकारी आपको देंगे। तो हम महानगर पालिका से निकले ही थे कि ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताने वाले थे, लेकिन महानगर पालिका में सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर कुछ महिलाएं महानगर पालिका तक आए हैं और इनकी शिकायत है कि इनको दूध मिल रहा ही नहीं। सलम एरिया से आए हैं, शापीटी से। आइए इन्हीं से बात करते हैं। कब से दूध नहीं मिल रहा तुम्हें? अभी तक दूध दिए नहीं। कहाँ से आए तुम्हें? शापीटी। वो कौन बाढ़ते हैं, कौन दूध? आँख इनोज घरा देते ही हमना जाग खोड़ा तो हमना एक नहीं दे बोलो। हमना तो दूध हम रावने वाले हैं, गरीब हैं, हम रावने वाले। दूध मांगने जाने को तुम्हारा सलाह मेरा नहीं देते कर बोल रहे हैं। ऐसे क्या करना? देखो मैं बच्चे का चले घर में बैठे हैं, बाहर दिन से मिला तो तुम्हें इतने दूर महानगर पालिका तक चलते हैं? चलते हैं तो कभी ऑटो सुधार नहीं लिया, ऑटो ले कम नहीं आते, पकड़ते हैं कर बोले हम ना वहाँ से चलते हैं तो पत्र में घर में क्या करना। अब यहाँ किसे मिले तुम्हें? यहाँ साहब को मिली जाग बोलेंगे कहते हैं जाग कुमार छोरन दो भाई को देवगिरी करने गए। देवगिरी क्या बोले हमने मालूम नहीं। सलाह मेरे को देने खाए कर बोले हमने देवगिरी। साहब क्या बोले तुमने? साहब लोग अभी क्या बोले, लिस्ट नाम निकले, नाम निकले तो मैं कल बोल साहब को पूछकर बोले उन्होंने, क्योंकि वहाँ से चलते 5 बच्चे हमारे बेटे चाहिए तो गरीब बहुत है, बच्चे सब तड़प रहे, क्या खाना क्या पीना, 8 दिन का 10 दिन का वक्त तो आप क्या करना देखो आप तो मैं क्या सोचे फैसला करो। ಈಗ ತಾವು ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು, ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸ್ಲಮ್ಮದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಜನಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರಿಗಾಗಿನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಹಂಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಜನರಿಗೆ ಸಹಿತ ಈ ವಿಷಯನ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೇ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ सशक्तವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ। तो लोगों ने जब महानगर पालिका को इस महिलाओं ने यहाँ पर आए और अपनी शिकायत की तो यहाँ पर जो इंचार्ज है इन्होंने कहा कि ये डिक्लेयर सलम एरिया के, लेकिन इन्हें भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो है सलम एरिया शापीटी डिक्लेयर सलम एरिया जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें दूध रोज़ाना जो फ्री दूध है जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। दिन हाल ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿನ? ಹಾಂ ದಿವಸ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ। आज यहाँ सुनगार गली में आप जो आकर मुआयना कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी मालूमात होने के बाद ही लोगों को सही ढंग से सरकार की जो भी योजना है वो मिलती रहती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 लीटर हमेशा यहाँ मिल रहा था 4-5 दिन से, तो 14 तारीख तक ये था। अब सुनने में आ रहा है कि आधा लीटर मिल रहा बोल के। ये सरकार की तरफ से है या अपनी तरफ से मनमानी चली है मालूम नहीं, क्योंकि सरकार 1 लीटर जो देना था वो 14 तारीख तक दे दूँ बोल के बताई थी। हमें सरकार से आग्रह करते हैं कि वो 1 लीटर ही दिए तो लोगों को अच्छा रहेगा। इसके लिए सरकार कोशिश करे, सिर्फ दूध ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में अनाज का भी गरीबों को बंदोबस्त करे, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि मज़दूर लोग घर में बैठ गए हैं, बाहर आने की तक ताकत नहीं है। चंद एक लोग बीमार हैं, परेशान हैं बहुत। इसको वार्ड वाइज मेडिकल कैंप लगाकर और सोशल डिस्टेंस का जो बात कही जा रही है वो रख कर घर घर जाकर सर्वे कर कर किसकी हालत क्या है देखे तो सरकार अच्छा रहेगा। और ख़ासकर स्लम एरिया में जो बहुत ही परेशान हाल लोग हैं, उनके बच्चे बीमार हैं,
बहुत से लोगों के देख रहे हैं कि वो दवाखाना नहीं मिलने की वजह से कल एक यहाँ बच्चे की डेथ हो गई। ऐसे हालात हर मोहल्ले में होते रहते हैं इस्लाम में। वो सरकार अगर सही ढंग से देखी तो बीजापुर जैसा कि एक बताया जा रहा है कि ये जो कोरोना से बचकर है, ये इसी तरह अगर डीसी साहब और एसपी साहब HQ साहब जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपका नाम? अकरम माशाल्लाह। आप सलम एरिया के जो लीडर भी हैं और यहाँ के लोग जो शापिटी के जो महिलाएं थे वो महानगर पालिका को तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर पैदल अभी आकर मिले थे कि वो कह रहे थे कि हमें दूध नहीं दिया जा रहा है। हाँ, एक जो यल्लम्मा गुड़ी स्लम है जो बिल्कुल स्टेडियम के सामने है, वो स्लम डिक्लेयर स्लम है, मगर मैं हमारे महानगर पालिका के मोरे साहब से कांटेक्ट करने के बाद वो बताए कि वो एरिया हमारे को नाम नहीं दिया गया है। तो मैं स्लम बोर्ड से भी बताया तो वो बोले कि हम पूरा लिस्ट दिए हैं, कहाँ कंफ्यूज हुआ मालूम नहीं दिए। तो भी जो वहाँ स्लम एरिया देखकर उनकी हालत देखकर सरकार देना चाहिए। मेरे को लिस्ट नहीं दिया बोल के उनको उड़ाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब जहाँ हैं, परेशान जहाँ हैं, वहाँ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देकर उनको उनका जो मिलना है योजना वो मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि दूध जो है सही लोगों तक पहुँच रहा है? नहीं, इसका ये नहीं कि गलत हो रहा है बोल के, बहुत सी जगह पे रिपोर्ट मैं लिया हूँ, बहुत से मोहल्ले से फ़ोन भी आ रहे हैं कि मिल रहा है। चंद एक जगह ऐसा छोटा मोटा जरा हुआ है, उसको सरकार सही करे। बताओ आइए हम जो है सलम एरिया के एक एक घर का मुआयना करेंगे और सही मानों में उन हकदारों तक यानी गरीब परिवार तक जो सरकार की स्कीम है वो पहुंच रही है या नहीं, इसकी हम जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। ಹಾಲು ಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತರಿ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹಾಲು ಸಿಗ್ತವ್ರಿ ದಿನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು? 1 ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿನ? ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। घर तक लाग देते हैं क्या तुम्हें से लाते हैं? घर तक लाग देते हैं। इल्ले तन ಕೊಡ್ತಾರೆ ना ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? दूध मिलता नहीं फ्री में? फ्री में 4 है। कितना है? रोज 1 लीटर 1 लीटर तुम्हें लाते हैं क्या? उन्होंने लाग देते हैं? छोरन लाग दे रहे लाग दे रहे हैं। लाख को दे रहे हैं फ्री में तुम ना दे रहे हैं? कितना देते हैं? आधे पैकेट 1 लीटर का 1 लीटर 19 लाख देते हैं। 19 लाख देते दूध फ्री में मिलता तुम ना? कितना मिलता? 1 1 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ತಾ? ಹಾಲು ನೀವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಮನೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 2 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಲೀಟರ್ ಮನೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮುಂಜಾನೆ 7:30. ಇವತ್ತಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ 200 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತವೆ, ಯಾರು ಉಳಂಗಿಲ್ಲ? तो शापेटी का जो एरिया है सलम एरिया, वहाँ पर जो दानम्मा संस्था है तो वो संघ है तो उन लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम लोगों को दूध बांटा जाए। 200 लीटर दूध जो ये एरिया को आता है और जो इस संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें हमें बात करे थे। इधर ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ है? ಇಲ್ಲ ಏನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರೇಖಾ। जो शापेटी में दालगली यल्लम्मा गुड़ी के पास जो सलम एरिया डिक्लेयर है, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें जो दूध फ्री में जो स्कीम है सरकार की, उसके तहत दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
ಹಿಂಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ಲಾಕತ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಯಾರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಬರೋನ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮನೆ ತನಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಾರಿ ಬರೋವಲ್ರಿ ಕೇಳಾಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸಲಮ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಹಾಂ ರೀ ಯಾರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ರೀ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 4-5 ದಿನ ಆಯ್ತು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಲು ಕೊಡ ಒಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 45 ಮನಿ ಅದಾವ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ दूध ला को देते क्या आपको नहीं जी नहीं जी अभी तक दूध नहीं दिए नहीं दिए जी किसे पूछे भी नहीं जाको तुम्हें नहीं जी बोले तो नहीं पूछे जी कहाँ भी गए भी नहीं तेरी सर आते एक दूध में लेकर गया कौन सा एरिया है ये हमारे शहपेटे आता सर सलम सलम में यही सलम में रहता सर ये पूरा हैवी है कौन तो 1 लाख दूध नहीं लेकर गया अभी तक सर किसे बोले भी नहीं कहीं जाको तुम हाँ बोले वहाँ गए जाते हैं सर फजर आना 8 बजे आना कहते माधव गुड़ी के नहीं आपको आना कहते पर नामा लिस्ट लिखेंगे थे उनको उतास कहते हो उनको उतास दूध कहते हमें गए क्या दिए जी एक पैकेट दिए लेकिन नहीं तो यहाँ के लोगों के नामा नहीं नहीं लिखे है कौन नहीं लिया हमारे गली पूरे कोई से नामा नहीं लिख गए सर कौन भी नहीं। हमें जा रहे हैं पापा जा रहे हैं गए तो दे दी सर लेकिन नहीं देते दूध उनको कभी देते हैं कभी नहीं नहीं गए परसों दिए दिए परसों दो बार गए थे दिए थे कहते हाँ। फिर परसों गए लिस्ट लेंगे जो नामा बता कहते उनको बाकी अलग नहीं बाकी वाले नहीं उनका मेंबर आता कहते वहाँ उनको होता देख जाकर कहते उनको देखो खड्डे हाँ, देती हम तो नहीं क्या भी देच नहीं देखो हमने क्या वहाँ खड्डे गली जरूरत देती हमने तो क्या भी देच नहीं है कौन भी आए भी नहीं हमारे गली को ये गली में और दूध दिए नहीं हमारे गली में कौन भी नहीं चाहिए देखो क्या उन बोला जानने मालक ने उन होता दिन देखो चांदनी हाल के सामने जो है ये आपको जो डिक्लेयर सलम है तो यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन्हें दूध की पैकेट रोज़ाना मिल रही है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर दूध नहीं दिया जाता। और इस बात को लेकर हमने जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की तो वो कहते हैं कि ये डिक्लेयर सलम है लेकिन हमारे लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और इसी मोहल्ले के जो औरतें हैं जो महानगर पालिका को पास आए थे सुबह, उनकी भी यही शिकायत थी कि वो उन्हें दूध नहीं मिल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दूध मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा देखो कितने दिन से? अभी कब से चालू है जब से नहीं देखो क्या एक बूंद क्या भी नहीं हम ना हूँ बैठी देखो अभी तो कौन ला को दिए कौन ना? भी नहीं बाबा किसी पूछे भी नहीं तुम्हें? नहीं जी पूछ को बैका जा को पूछे तो भी नहीं दे रहे नहीं दे रहे। क्या बोलते हैं? नहीं देते तो हमारे गली को करते ये तुम्हारा सलाम एरिया नहीं? तो लिस्ट नहीं है अगर बोलते हैं ना। लिस्ट दिए छी नहीं मिलता क्या दूध नहीं? नहीं मिला सर अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। क्या बोलते हो ना? दूध दो कने में? दूध का तो नहीं है अब तुम्हारी से गली नहीं आता कभी ये गली को नहीं आता कहते हैं? लिस्ट आयच नहीं कहते हैं सर आयच नहीं कहते हैं वो लिस्ट में ये गली का नाम नहीं है बोलते हैं। बोलते हैं किसे मिले तुम्हें जाको? यहाँ मीनाक्षी को और इनको भी मिले थे हम्म, इन्हों भी वट खाली हाथ उड़ा ले छोटा हट क्या बोलते हैं इन्हों? क्या है इन्हों देखेंगे लोग कर कहे अताज बेचो बैठे भी क्या ने तो आपने लिस्ट दिया है इन्हें? लिस्ट दिए डिक्लेयर है सो पूरा ये बताया मैं, बताने के बाद भी वो डीसी को जाकर मिलो, मेरे को तो इतना पावर नहीं है मैं खुद दे दे, मगर तुम्हारा स्लम बोर्ड वाले लिस्ट दी बोले। स्लम बोर्ड को भी पूछा मैं, नहीं दाल गली बोल को हम दी बोल के बोल रहे हैं। कंफ्यूज यहाँ यल्लम्मा गुड़ी दाल गली बोल के है, दाल गली यल्लम्मा गुड़ी बोल को स्लम डिक्लेयर है ये। तो वहाँ क्या कंफ्यूज हुआ मालूम नहीं, मगर कुछ भी हो गरीबों को मिलना वो मिल रहा नहीं। इसके लिए हमारी तुम्हारे से बोलो या सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनको इनका हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बिल्कुल मुस्तहिक हैं इसके गवर्नमेंट की स्कीम के। ये लोग यहाँ पर जो 8 दिन से जब से ये स्कीम शुरू हुई है, लेकिन उन्हें यहाँ पर स्कीम का एक आधा लीटर दूध तक भी इस मोहल्ले में, तो ये काफ़ी सलम एरिया, काफ़ी गरीब बस्ती है और बिल्कुल सलम एरिया है और सरकार की लिस्ट में भी ये डिक्लेयर सलम एरिया है, लेकिन
जब ये दूध मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि इनकी गली का नाम उनके लिस्ट में नहीं है, यानी जो उसके मुस्तहिक हैं उन तक ये स्कीम नहीं मिल पा रही है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार की स्कीमों का ये ऐसे मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे, इसका फ़ायदा हो। बोलो तुमने भी नहीं मिलता दूध? क्या अभी नहीं, देखो क्या क्या तो पाव लीटर दूध नहीं, चुप भूखे पैसे पड़ रहे हमारे घर में, क्या पूछो ना को दिन का लॉकडाउन क्या भी नहीं, देखो आज तक क्या भी आपको पहुंचा नहीं, कौन सा मेंबर आपको देखा भी नहीं, तुम्हें मरे क्या जिंदा है क्या कर को बोल को एक भी आपको देखे नहीं, कुछ भी हमको मिला नहीं और सलाना डिक्लेयर नहीं हुआ और तुमको कुछ भी नहीं मिलता कर बोलने जाको पूछे तो सर हमारा हालत हमारा बहुत खराब चली, हालत देखना बहुत खराब है। क्यों जीना, देखो बच्चे कच्चे के लिए क्यों तो रहना बोलो, पाव लीटर दूध तुझा नहीं कहते क्यों रहना बोलो, देखेंगे किसी के औरत रहने का क्यों, काम कर खाने के लोग आए हमें, गरीब बस्ती है हमारी, एक भी आपको पहुँच रहा नहीं, एक भी कौन भी मदद भी कर रहे नहीं, ना मेंबर भी आके पूछ रहे नहीं, कौन भी आए नहीं आज तक हुए तो भी। तो अब हमें एक बात बताइए, ये डिक्लेयर है या नहीं? लोग इसी कंफ्यूज में। 100% डिक्लेयर है और ये लिस्ट भी है, लिस्ट के अंदर है, उनको क्या कंफ्यूज हुआ मालूम नहीं, मगर डिक्लेयर होंगे या नहीं होंगे, ये गरीब बस्ती है या नहीं, ये सवाल है मेरा सरकार से। देखो ये दूध भी दे रहे हैं, क्या भी नहीं मिल रहा? क्या भी नहीं मिला, देखो हमने मिलने का छोड़ को दूध छोड़ को क्या भी उजला पैकेट नहीं मिला हमने कल्ला। देखो बाबा ना है घर हमें चीप बैठो ना, क्या करते हालत बहुत खराब है, देखते तो बाद में देखते हैं, हालत बहुत खराब है। अब आगे जीना क्यों, ये लॉकडाउन व्यवस्था क्या पूछो नको तुम्हें, खाली उधर दे गए तो हम गरीब बस्ती वाले क्या करना, उन्होंने क्या करना बोले देखेंगे, अनाज बांटे उधर अनाज उधर का उधर बाट को गए भी, इधर वाले क्या करना बोले देखेंगे। हाँ पाव लीटर दूध नहीं तो बच्चे कच्चे जीना क्यों, पानी पी सोने पड़े ही हमारी, आगे भी बंद हुए तो भी हमें क्यों जीना, मकोड़े से मर को जाते हैं हमें, सरकार सबको देना नहीं थोड़ा थोड़ा, हम भी ऐसा कैसा बोलो देखेंगे। ये गली में कौन से मेंबर भी आ रहा नहीं, कौन भी आ रहे, देख रहे ना मरी जिंदगी कर करना, पूछ रहे नहीं, कोटा मांगने का तो जल्दी आती भी, ऐसा कैसा अनाज नहीं दूध नहीं, क्या क्या पूछो ना को, देखो हमें तुम्हें क्यों वही करना पूछ रहे हम ना। ये शापेटी यल्लम्मा गुड़ी घर दूध मिल रहा है आपको, फ्री में दूध दिया जा रहा है सरकार की ओर से, दूध मिल रहा है? मिलता फ्री में लाग देते हैं तुमने दूध? अभी बोल रहा तो तुम्हें नहीं, कल नाम निकाले गए, मिला नहीं, बोलो मिले कि नहीं दूध? तुमने नहीं मिला? जब से लॉकडाउन हुआ है, कुछ भी कोई भी अनाज देने के लिए नहीं आ रहा, कोई दूध नहीं दे रहा, कुछ भी मिल रहा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं खाने पीने वाले, कौन भी मदद नहीं कर रहा हमारी। सब बोलते हैं सलम डिक्लेयर नहीं हुआ, तुम ना देते नहीं कर को बोलते हैं। अभी हमारा सलम डिक्लेयर नहीं हुआ तो क्या हमें भूखे मरना? डिक्लेयर है, हाँ हमें भूखे मरना क्या, सलम डिक्लेयर नहीं हुआ तो? फिर हमारा अभी हमें घर में रह रहे हैं, हम ना निकाल देंगे बाहर, फिर हमें क्या खाना क्या पीना, होना नहीं, हम ना अभी बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। सरकार से उसे आधा लीटर दूध फ्री में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हम ना कुछ भी नहीं आया, हम ना जब से लॉकडाउन हुआ है ना हम ना अनाज दिए ना दूध दिए, हम ना कुछ भी नहीं आया। हम ना ಇದು ಹಾಲು ಸಿಗ್ಲಾಗತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ಹಾಲು ಸಿಗಾಗ್ತಿಲ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಹಾಲು ಸಿಗ್ಲಾಗತ್ತವ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಅದು? ಬ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೈತಿ, ಕಾಲ್ ಬರುವಲ್ಲು, ಯಾಕೆ ನಿಂದಿರ್ವಲ್ಲು, ಸುಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಈಗ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ? ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ? ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಇಲ್ರಿ ನಮಗೆ. ತಗೋರಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಕೈ. तो यहाँ पर आपने देखा कि शापेटी सलम एरिया में जो हम ठहरे हुए हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि जो दूध के पैकेट जो है घर घर ले जाकर दिया जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छा काम है कि लोगों के घर तक पैकेट को पहुँचा रहे हैं, क्योंकि अगर एक जगह ठहरेंगे
तो तमाम लोग आकर एक जगह जमा होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, इससे भी काफ़ी दिक्कत होगी। ये बहुत अच्छा आपने जो है ये काम किया है कि लोगों को घर तक ले जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए लोगों को घर तक ले जाकर ये पैकेज जो सरकार की स्कीम है इसको पहुंचा रहे हैं। पीटी बोडी एक बड़ा स्लम एरिया जो है बीजापुर में, तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो दूध का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जो दूध डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी जिसे दी गई है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आज कितना लीटर दूध आया? आज 27 लीटर 27 ट्रे दूध आया आज। 27 ट्रे दूध आया। कितने लीटर दिए एक घर को? एक आधा लीटर दिए आधा लीटर। इससे पहले एक लीटर आता था। हाँ। अब वो जिसे मिलता जिसे नहीं मिलता कर बोल कुछ आधा लीटर बोल को दिए नहीं। सरकार का आदेश ही आज से आधा लीटर है। आधा लीटर दे रहे हैं घर को। सब घर सफिशिएंट होता? अल्लाह का शुक्र है, आधा सब कुछ हो रहा है बराबर। सबको मिल रहा? सबको मिल रहा दूध। कितने जने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले? तकरीबन नहीं तो 20 जने। 20 जने घर तक ले जाकर पहुँचाते हैं? यहाँ नहीं, घर तक पहुँचा हैं उनके ले जाओ। घर तक पहुँचाते हैं? घर तक पहुँचा। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम अमीन साहब है। कितना दिए? आधा लीटर। आधा लीटर दूध दिया। रोजाना देते हैं? दे बाबा। आओ। हमारा देखा रो। हाँ हाँ, रोज देते हैं तो? दे बाबा, दर्द दे रहे हैं। हाँ। नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ। दूध मिलता है रोज? हाँ, दूध मिलता है। रोजाना लाख देते हैं क्या तुम्हें लेकर आते हैं जाको? नहीं आते हैं, आए देते हैं। आपको यहाँ से घर तक का लाख देते हैं? कितना लिया? कितने पैकेट दिए? 2 पैकेट। 2 पैकेट। 1 लीटर दिए तुमने? हाँ, 1 लीटर दूध मिलता है रोज? रोजाना देते हैं? कितना देते हैं? आधा पैकेट। घर तक लाख देते हैं? बच्चे घर तक लाख देते हैं? कितना आज कितना दिए? आधा लीटर दिए। रोजाना कितना देते थे? आधा लीटर। रोजाना 1 लीटर देते। हाँ, उसके बाद आधा लीटर दे रहा। आधा लीटर दे रहा। दूध मिलता है रोज? है कितना? आधा लीटर। रोजाना आधा लीटर मिलता। घर तक लाख देते हैं? लीटर देते थे। ऐसा दूध मिला? कितना लीटर मिला? आधा लीटर। रोजाना मिलता? रोजाना आधा लीटर मिलता क्या 1 लीटर मिलता था पहले? पहले फर्स्ट दिए, बाद में आधा लीटर दे रहे। घर तक लाख देते हैं? घर तक लाख जो मिल रहा है मिलता है। घर तक लाख देते हैं? देते नहीं? कितने घरों को बांटते हैं रोज? सब आज पकड़ो वहाँ तक बांटते हैं, उधर और लाइन उधर अलग बांटते हैं, इधर से लाइन एक अलग बांटते हैं, छोरंदा सब बांटते हैं। आज कितने लीटर आया था? आज 3 कैरेट आता। 3 कैरेट। कम आया था जरा से, बराबर बात छोड़ो, एक दिए कम हो बराबर। आधा लीटर दिए? 1 लीटर दिए? आधा लीटर दिए। तो इससे पहले कितना देते थे? 2 लीटर देते थे। 1 लीटर देते थे। आज आधा लीटर दिया? आज आधा लीटर। सबको पहुँचता? सबको पहुँचता। रोज मिलता? हाँ, रोज मिलता। कितना मिलता? आधा लीटर 2 दिन हुआ, पहला लीटर देते। तो घर तक आको देते? घर तक आके देते। आधा लीटर। आधा लीटर दिए। रोजाना देते हैं? रोजाना आधा लीटर देते। तो ये पीटी बोडी स्लम एरिया जो बहुत बड़ा स्लम एरिया है, यहाँ पर 2-3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ये दूध का डिस्ट्रीब्यूशन करने की। तो हमने यहाँ का सर्वे करे हैं, अब तक हम लोगों को मिल रहे हैं, उन्हें दूध मिला है। आज से जो आधा लीटर दूध मिला है, इससे पहले 1 लीटर मिलता था, आज से आधा लीटर मिल रहा है। आइए और जानने की कोशिश करते हैं। तो आज सरकार की तौर से, प्रशासन की ओर से आज आधा लीटर किया मिल रहा है रोज? मिल रहा है रोज मिल रहा है रोज देने का सब मिल रहा है यार क्या थी भी गरीब बोल को जरा गरीब की बच्चे क्या ऐसा करे तो राशन में दे रहे हैं तुमने? राशन में दे रही है, मीठा तेल वो भी अच्छे सोने में देने वाले मुआ देखो देने लगी भी इधर नहीं दे रहे। कैसा है गरीब की बस्ती है, देखना पड़ता है इधर। ठीक है, आधा लीटर दे रहे। आज से आधा लीटर दे रहे हैं। इससे पहले उसके पहले 2 दिन 1 लीटर दे, अब उसके बाद 1 पैकेट दिए। अभी थोड़ी है तो 1 पैकेट घर तक लग देते हैं। यहाँ लगा देते हैं। कितना दूध है? घर तक लगा देते रोजाना। तो आज हमने 2 बड़े स्लम एरिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। एक शापीटी स्लम एरिया है और एक पीटी बोडी स्लम एरिया, रजिस्टर्ड स्लम एरिया है, डिक्लेयर स्लम एरिया है। तो यहाँ से हम लोगों की जानने की कोशिश की कि सरकार की जो स्कीम है, तो फ्री में जो 1 लीटर दूध कल तक दिया जाता था और आज आधा लीटर दूध है दिया जा रहा है। लेकिन
इसमें जो है स्वयं संस्था के लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और हमने देखा कि वो बखूबी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। लेकिन कल तक भी उन्हें आधा लीटर दूध मिलता था और आज से भी आधा लीटर दूध मिल रहा है, ऐसे भी कुछ लोगों ने हमें बताया। और इसके अलावा चंद एक ऐसा सलम है जो चांदनी के पास हमने जो आपको बताया, लेकिन उन्हें एक पैकेट दूध भी आज तक नहीं मिला है। तो अधिकारियों से, प्रशासन से वो जाकर लिखित रूप में भी अपनी कंप्लेंट दिए हैं, लेकिन प्रशासन से भरोसा दिया है, लेकिन अब तक उन्हें कोई दूध नहीं मिला है। कोई भी मदद उन तक नहीं पहुंची है। हम भी अपील करेंगे प्रशासन से कि जहाँ जहाँ भी गरीब हैं उन तक आपकी स्कीमें पहुँचाएँ ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंस को काफ़ी मेंटेन किया गया है, क्योंकि ये जो दूध डिस्ट्रीब्यूट करने वाले नौजवान हैं वो घर तक जाकर दूध के पैकेट उनके घर तक पहुंचा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखा हुआ है। हम भी अपील करेंगे जहां भी आपको दूध नज़र आ रहा है वहां पर भीड़ मत लगाइए। ऐसी कोई भी सुविधा आपको दी जा रही है तो अपने घर बैठे हासिल करें, जाकर कहीं भी भीड़ ना लगाएं, क्योंकि कोरोना वायरस को जब हम हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ही उपाय हमारे सामने है कि हम लोगों को भीड़ न जमा करें और अपने पास भी न जमा होने दें। इसी के चलते भारत को लॉकडाउन किया गया है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।